Hello and a very warm welcome to this special show on the MSMEs. Micro, small and medium enterprises contribute to the Indian economy in a big way on many fronts and provide large-scale employment. इस बदलते दौर में ये जरूरी है कि उद्यमी अपनी वर्कफोर्स को न्यूअर अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के लिए तैयार करें ताकि वो कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। आज का सेशन इसी अहम मुद्दे क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स पर केंद्रित रहने वाला है और हम इस क्षेत्र की लीडिंग वॉइसेस के साथ मिलकर 360 डिग्री नजरिया देने की कोशिश करेंगे। आई एम हैप्पी टू वेलकम के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एलीप, former member Prime Minister's Task Force on MSME. Dr. H.P. Kumar, Director External Affairs Power to SME and former CMD NSIC. साथ ही मौजूद हैं समीर साठे, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाधवानी एडवांटेज। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर कुमार, इनिशियली आप हमें बता सकें, उद्यमी बाउंस बैक करने पर जोर दे रहे थे कि अब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। How are you analyzing the undertone in the sector और workforce को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? MSME sector was limping back to the normalcy after this COVID impact, great adverse impact because of the COVID-19. And we were expecting that the MSME sector would surely rise above, in fact, the other sectors in terms of its performance and growth. But then because of this Russia-Ukraine crisis, which impacted substantially, in fact, the global economy and also the Indian economy, with the result of substantial inflation, price increase, and other constraints, in fact, in availability of inputs and materials. The sector has started, facing some difficulties again. Raw material price increase has been substantially, taken as the biggest problem for the MSME sector. And recently, the RBI increasing the interest rates also, in fact, is impacting now. With regard to the labor issues, I would say that the labor issues continue to remain as difficult as they were earlier. While the Government of India brought in labor codes to club, in fact, various labor-related regulations and laws, but their impact is still not visible. And the micro and small sector particularly, and the informal sector, all are facing these difficulties because of this labor. First of all, labor is not adequately available. Second thing, whatever labor is available, that is not fully trained. And third thing, there is a lot of mismatch in the needs of the industry, small and micro industry, and the availability of labor. In fact, draw a roadmap whereby these labor issues can easily be tackled, for which a separate maybe MSME code could be established. Ramaji, the pandemic has fast-tracked digital adoption amongst the MSMEs, and Industry 4.2 is also leading to demand for newer type of skills. इस फ्रंट पर small businesses को कैसे support किया जा सकता है? COVID-19 has accelerated, in fact, the technology intervention and adoption to technology by MSME sector. That's one good thing happened. And many, human resource also is skilled now, adopting to the new technologies. It so happened, because either you are there or you are nowhere in business. We are trying to get back our share of our business through adopting technology. So here the need for skilling is more with the latest technologies. I don't say that government is not supporting. There's a wonderful project which was introduced by Government of India under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship called Strive, which is encouraging apprenticeship. Before, industry used to have a feeling that apprenticeship is a very cumbersome and there is no incentive if we take apprentice. But that's a wonderful program which really helps us to get productive labor in place. We train our labor without the support of government. But under this Strive project, government has come forward to support MSME sector particularly to train their own manpower. This is one initiative taken which is having good results.
But I still feel that there's a lot to do. There are new skills which have to be adopted. Even employers need to come forward to register in NAPS and uh, try to take advantage of the scheme. This is not happening in a big scale. So Right. the convincing mode has to be there with the government also. Increase the incentive so that more industry adopt this Strive project. समीर जी, इस दौर में जब कई नए मौके आ रहे हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी पर जोर देना जरूरी है। और ऐसे में द रोल ऑफ वर्कफोर्स इज क्रूशियल इन ऑर्डर टू इक्विप द वर्कफोर्स विद न्यू स्किल सेट एंड इनोवेटिव माइंडसेट। व्हाट इज योर एडवाइस? In MSMEs today, the need of the hour is really to look at their own current set of skills, whether they are domain skills or functional skills. जैसे sales की बात हुई, production की बात हुई, procurement की बात हुई, all these different functions. इनका अभी Industry 4.0 से बहुत सारा important चीज़ अभी उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि Industry 4.0 is a new wave that they need to adopt to learn better and also to unlearn some of the things that they have done in the past. अभी बहुत सारे ऐसी skills है जो across the functions horizontal important. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे data making sciences, right? Data analytics, decision making sciences. So for example, अगर problem solving करना हो, अगर procurement manager को और या फिर किसी sales manager को या फिर sales बंदे को अगर negotiate करना हो अपने customer से, तो उनको सीखना पड़ेगा वो सारी टेक्निक, वो सारे डिसीजन मेकिंग साइंसेस। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो अक्रॉस द फंक्शंस है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। इंडिया इज गोइंग टू एक्चुअली फेस अ शॉर्टफॉल ऑफ 7 million प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स अक्रॉस द फंक्शंस, अक्रॉस द एमएसएमईज इन द नेक्स्ट 10 years। सो अगर ये देखा जाए तो ये स्किलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्किलिंग का जिक्र करें so it is at different levels, right? So there are entrepreneurs, owners and founders. They need to learn how to manage better, lead better, use the data analytics, use the artificial intelligence, use Industry 4.0 and enhance the quality of what they do in terms of their decisions. और अगर आप first level, second level, third level functional managers की बात करें तो उनको उनके ही function में integrated approach adopt करना चाहिए। They should not be only confined to only their own functions, but they have to see the totality of the company in a holistic manner. These are very, very critical skills that they need to learn and go forward. डॉक्टर कुमार, मौजूदा स्किल्स में गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? एमएसएमईज अपनी वर्कफोर्स को नए दौर के लिए तैयार करने पर कैसे काम करें? आपका क्या मानना है? मेरे विचार से इसको दो तरह से डील किया जा सकता है। एक तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापित करके और जो अन्य स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं विभिन्न मंत्रालय चला रहे हैं, जैसे DDU GKY एक योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है उनका ये, और भी मंत्रालय इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन लोगों ने तय की है वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट है कंप्लाई करना किसी भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस इन लोगों ने, इन मंत्रालयों ने, इन डिपार्टमेंट्स ने, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है शासन की, वो जो नंबर एस्टिमेटेड था स्किल डेवलपमेंट का शुरू से, जब से ये स्किल डेवलपमेंट मिशन बना और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना, ये नंबर कहीं बहुत ही नीचे रह गया। और यही कारण है कि हमारे देश में जो स्किलिंग का टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट रखा गया था पहले, तो फंडिंग बहुत है, बजट एलोकेशंस भी बहुत है, इंस्टीट्यूशंस भी बनाई गई, मिनिस्ट्री भी अलग बनाई गई, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टर्म्स कंडीशंस हैं और जो स्किल डेवलपमेंट के टारगेट्स एलोकेट किए जाते हैं वो बहुत ही कम तरह से अचीव हो पाते हैं। तो एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। दूसरा, इम्पैनल एजेंसीज जो की गई हैं वो बहुत ही कम है। इसमें देश की जितनी एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, विशेषकर एमएसएमई इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, उनको और अधिक मात्रा में इम्पैनल किया जाए, क्योंकि नंबर की जो रिक्वायरमेंट है, स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अधिक है। हम अभी शायद 10% तक ही पूरी कर पा रहे हैं। तो एक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव। आपने जो पूछा कि इंडस्ट्री किस तरह से अपने वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करे और उनको तैयार करे अपने इंडस्ट्री के लिए और स्किल मैचिंग के लिए, जो उनकी मैच करें,
तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इंडस्ट्री को भी अगर पार्टनर बनाया जाए और इंडस्ट्री क्लस्टर्स में जो इंडस्ट्री क्लस्टर के जो एसोसिएशंस हैं उनको लेके और उनके जो वर्कर्स हैं, बेसिकली क्लस्टर्स में जो वर्कर्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड ही होते हैं, तो उस सेक्टर के वर्कर्स को तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाए बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बाई अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट कि स्किलिंग के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी एक रिक्वायरमेंट है देश में। ये जो मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत कम ध्यान है देश में और एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है बहुत अधिक, और इससे ना केवल नए बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनेगी, पर इससे बेसिकली स्किलिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो दोनों तरफ इसकी रिक्वायरमेंट है और दोनों तरफ से इसको पूरा करने की आवश्यकता है। समीर जी, एमएसएमईज के लिए टैलेंट को ट्रैक करना फिर रिटेन करना आसान नहीं रहता है। आप क्या मानते हैं, अपस्किलिंग रीस्किलिंग से प्रोडक्टिविटी बूस्ट होने के साथ साथ ये टैलेंट को रिटेन करने में भी क्या हेल्पफुल हो सकता है? इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल कि अगर टैलेंट को अगर अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो एम्प्लॉयर है उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनको दिखना चाहिए, उनका ब्रांड नेम एस्टैब्लिश होना चाहिए ताकि अच्छी टैलेंट उससे अट्रैक्ट हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो रोल वो कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, समझो प्रोडक्शन में या सेल्स में या मार्केटिंग में, जो भी रोल आप वो करना चाहते हैं, इसमें अभी देश में बहुत सारा गैप है। जो नंबर ऑफ पोजीशंस है, रोल्स है, और जो टैलेंट की जो एकेडमिक बैकग्राउंड है और उनको जो सिखाया जा सकता है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी गैप है। तो अगर टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो उनको लगना चाहिए कि उनका जो आउटपुट है वो कंपनी का बहुत सारा उसको सेल्स को बढ़ावा देगा। अगर वो उनको नहीं समझेंगे और उसके लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगी तो वो कंपनी में वो जाएंगे नहीं। तो तीसरी बात ये है कि अगर आदमी अगर प्लेस किया जाए एंड इवन इफ ही और शी गेट्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी, उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत सारी फर्क पड़ता है। हमारे स्टडीज जो हमने किए हैं उसके मुताबिक तो देयर इज अ 20 to 50% गैप इन टर्म्स ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल्स एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल्स। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक तरफ आपको मालूम है कि इंडिया के जो 63.3 मिलियन एमएसएमईज है उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, करीब 35 to 40% ऑफ देम आर रियली स्ट्रगलिंग, राइट, एंड वी हैव अ लॉन्ग टेल। तो ये इनको अगर अट्रैक्ट करना है टैलेंट को तो दे नीड टू अफोर्ड दैट टैलेंट, दे नीड टू बी रिवाइव्ड। सो देयरफॉर तीसरी बात ये है कि एम्प्लॉयर जो है उसकी जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, because then it will allow them to attract the right talent. Talent will feel motivated to join those companies because they will grow with the companies, and then there is an alignment that should happen. डॉक्टर कुमार ने बताया कि क्लस्टर लेवल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जो पैसा इसमें स्पेंड हो रहा है वो जो स्किल्स की तरफ जा रहा है वो skills are not the same which will make these employees more productive in future. It's going into traditional normal skills, but there are a lot of other skills which are going to become very important. So the routing of that spend is very important. The alignment between the employer's growth and the talent that is looking for certain good companies, it's very important. And thirdly, they should be viewed as in holistically in totality. कि जो हमसे country को अगर जीडीपी इतना बढ़ाना है, इतना अगर नंबर्स अटेन करने हैं, तो कौन से सेक्टर्स में, कौन से क्लस्टर्स में, कौन से कंपनीज में उसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसी बात को आइए आगे बढ़ाते हैं। रमा जी, योर व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लस्टर मैपिंग, as this could be helpful in understanding the skilling needs of a particular region, and accordingly MSMEs can be supported. Do you agree? That's very important because there's a sea change happening now because of the intervention of technology. You know, like for example, even in garment sector, they need to learn about CAD, and there is sophisticated machinery introduced to improve the productivity of the industry. So here, I mean, the old syllabus and also the skills which are adopted by various programs are not at all relevant. So there is a need for change of syllabus. We are facing the problem in sectors which got a high demand. There we need to improve our production. Production improvement happens only with human resource. So sectors like garments and textiles, garments, and also in other sectors like food processing, there is no upgradation of syllabus, and also
availability of manpower, trained manpower, I mean, who can become trainers. So even that is, there is a gap. Government need to adopt a very unique method to handle this huge requirement of MSMEs by entering into partnerships with industries who can employ a large number. Today, what's really happening is only 2% of our youth are really skilled, are useful to the industry. There's a huge human resource available which is not tapped. And one more suggestion, I know, like in the secondary level also, in school level itself, if we can introduce some kinds of skills, it's useful to the industry. That's what I felt. Dr. Kumar, do you feel that the matching between industry needs and skilling providers has to improve? साथ ही आप इंडस्ट्री और एकेडमिया को मिलकर किस तरह से वो एक पार्टनरशिप के तहत इस फ्रंट पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? इंडस्ट्री और स्किल प्रोवाइडर्स के बीच में तालमेल तो बहुत ज़रूरी है स्किल मैचिंग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत गैप्स हैं. इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं और जो स्किल प्रोवाइडर्स जो तैयार कर रहे हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, वो उससे मैच नहीं करती. प्रैक्टिकल डिफरेंट है, थ्योरेटिकल डिफरेंट है. और जहाँ तक आपने इंडस्ट्री एकेडमिया की बात की है, इंडस्ट्री एकेडमिया में तो अभी बहुत ही नेसेंट डेवलपमेंट हुआ है. और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट लाई है, इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना है. और एकेडमिया में जब तक हम सेकेंडरी लेवल पे और या किसी भी लेवल पे जब तक हम ये स्किलिंग को और वोकेशनल ट्रेनिंग को नहीं लाएंगे, तब तक ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो कोऑर्डिनेशन है, ये मुझे बहुत सफल होता हुआ नज़र नहीं आता है. अभी जो इंडस्ट्री एकेडमी का कोऑर्डिनेशन है वो केवल इंक्यूबेशन तक सीमित है. वो कोई बहुत ही लिमिटेड नंबर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ थोड़ा तालमेल किए हुए हैं. परंतु ये संख्या बहुत ही कम है और इसको बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है. और ये तभी होगा जब इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ उनके जो सेकेंडरी लेवल के जो आउटकम है, उनके बच्चे आ रहे हैं, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को लाया जाए और उनकी जो एजुकेशन है उसमें स्किलिंग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाए. गवर्नमेंट को इंक्यूबेशन बहुत प्रमोट करना चाहिए. केवल यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगी हुई हैं, उन तक सीमित ना करके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इवन जनरल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सब में इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करनी चाहिए. इंक्यूबेशन से मेरा मतलब है कि वो कोई इनोवेशंस या कोई नए प्रोडक्ट और नए प्रोसेसेस के लिए नहीं है. वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में जो अभी बात हुई है, इसको रिवैम्प करने की जरूरत है. लाखों की संख्या में youngsters can go for apprenticeship training. That can be a part of the university college education, secondary education. समीर जी, वाधवानी फाउंडेशन कई कंट्रीज में, कई रीजन्स में ऑपरेट करती है एसएमईज के साथ. आप स्किलिंग के मोर्चे पर कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहेंगे जिस तरफ देखना चाहिए? There are certain skills which are global and universal in nature, right? जैसे कौन से ही फंक्शन में अगर परफेक्शन लाना हो तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको तो इम्बाइब करना पड़ेगा ही. सो दोज आर यूनिवर्सल इन नेचर. मैं मानता हूँ जैसे सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव है, सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स अपैरल है, सेक्टर्स लाइक लेदर गुड्स है, सेक्टर्स लाइक केमिकल्स प्रोसेसिंग है. उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली जो आ रही है, इंडिया करीब करीब 1 or 2 waves इज बिहाइंड. सो इट्स अबाउट 10 years or 5 to 10 years behind. लेकिन उनकी जो R&D साइकिल्स की जो लेंथ है वो अभी कंप्रेस हो रही है और वो स्किल्स हम लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं. दूसरी टाइप्स की जो स्किल्स है, दोज आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर. सो जैसे मैंने पहले जिक्र किया पहले कि डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री 4.0 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग साइंसेस है. ये जो स्किल्स है, they really touch all the functions of a company, of an MSME. Where is it that the person gets to understand how to manage a project based on timeline, based on managing people, ensuring that everything is delivered. ये सब जो horizontal skills है वो पहले से ही शुरू होना चाहिए. इसके लिए क्या होना चाहिए कि Ministry of Education, Ministry of Skills and Entrepreneurship, Ministry of MSMEs, Ministry of Industries,
एक साथ उसका होलिस्टिक फ्रेमवर्क देखना चाहिए, देन इट मेक्स अ डिफरेंस. डेवलप कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और लार्ज कॉर्पोरेट्स है, they actually encourage their employees and the other suppliers and vendors to generate innovative products, to come out with better products, to actually incubate new businesses. हमारे देश में अगर आप देखा जाए तो incubation और entrepreneurship और technology-led entrepreneurship is looked at as one in isolation with the what the industry challenges are. जब तक इन दोनों का तालमेल नहीं होता, जब तक it is not treated as a holistic and integrated view, तब आपको पता चलेगा कि ग्लोबली जो प्रैक्टिस हो रहा है, इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. इनफैक्ट कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन कैपिटल प्रोडक्टिविटी. बट अगर आप देखा जाए कि अगर वो डिजाइन ऑफ द स्कीम और डिजाइन ऑफ द करिकुलम और डिजाइन ऑफ द एनी इनिशिएटिव्स हैज टू बी थॉट थ्रू कंसिडरिंग दिस होलिस्टिकली. तो यही मेरा मानना है, अगर ये किया जाए तो globally what we are experiencing and what we are experiencing in India in terms of the skills and in terms of the upgradation of the workforce in these kinds of things will become far, far better. Dr. Kumar, the proportion of formally skilled workers as a percentage of total workforce stands at 24% in China, 52% in US, 68% in UK, 80% in Japan and just 3% in India. What is your take on this? इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने के बाद, बजट एलोकेशंस करने के बाद, इंस्टीट्यूशंस बनाने के बावजूद भी हमारा जो अचीवमेंट हुआ पिछले 10 सालों में वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही ऑलमोस्ट नॉट इवन 10%. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट है कि उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूरा ही नहीं कर पाती. हमने देखा बहुत सारी एजेंसीज जो स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ काम करके भी देखा, उनकी बातचीत करके भी देखा, वो उन रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर पाती हैं जो स्किल डेवलपमेंट इम्पैनलमेंट के लिए और उसकी जो कंप्लीशन के लिए, उसके एग्जामिनेशन के लिए ये सब रिक्वायरमेंट जो रखी गई है, उसमें कितना परसेंटेज की उसमें एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स उसमें फिक्स की गई हैं स्किलिंग के लिए, तो उससे उसका बजट यूज ही नहीं हो पाता और वो स्किल डेवलपमेंट का नंबर ही पूरा नहीं हो पाता. एक तो दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है. नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर एम्पैनल्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्किल should be basically enlarged. More and more institutions all over the country, whether this is whether this involves industry associations, involves NGOs, it involves even institutions, colleges, the institutions which are working for clusters. In fact, all these institutions need to be involved. Some kind of flexibility should be given so that they can decide about the skills which are required locally for different clusters, instead of fixing the modules from the central level, which is difficult to match in fact at the local level. Ramaji, do you agree that we will have to work on war footing to address the skill mismatch and shortage? जैसे अब बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कई न्यूअर अपॉर्चुनिटीज भारत की तरफ आ रही हैं, ऐसे में जरूरी है कि हम तैयार रहें. I think what I mean to say is there's a great opportunity in front of us to become a 5 trillion economy, provided we jointly work for it. One is industry and also institutions like polytechnics and ITIs, which need to be revamped for industry need to source manpower from these institutions. It should become a mandatory. They need a lot of revamping with the latest skills and technologies adopted so that we get availability. Because what's happening in the practical ground level is we need, but we are not getting the right kind of skills. The institutions which are operating for skill should meet the demand of the industry. Another aspect which I wanted to say here is, why don't we adopt a German model like a dual skilling system? Why engineers need to look for a postman's job? We have to have a skilling in such a way at the secondary level itself so that industry can source from them and put them in the right place. The production can enhance and even waiting for a good job also will reduce. Let us not look for engineers. Let us look for skilled human resource available for industry. डॉक्टर कुमार, आप वोकेशनल स्किल्स को लेकर इंडियन माइंडसेट को कैसे रीड करते हैं?
वोकेशनल स्किल्स की बहुत आवश्यकता है इस देश में। वोकेशनल स्किल्स में बेसिकली जो लोग जाएंगे या जिनके जाने की नीड है वो लोग नहीं है जो वोकेशनल स्किल को मतलब वोकेशनल स्किल को जो नीचे स्तर पे देखेंगे, वो इंजीनियर्स और उसमें नहीं जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या है वो इंजीनियर्स और हाई टेक क्वालिफिकेशन नहीं प्राप्त करने के बावजूद भी वो हैं और उनको ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल लेने की। उन लोगों के लिए ये वोकेशनल स्किल्स की बहुत ही आवश्यकता है। मैं ये कहूँगा कि देश में वोकेशनल स्किल्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, या इवन अदर जो एजुकेशनल पॉलिसी में, नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर सेकेंडरी लेवल पे भी वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए प्रोविज़न रखा गया है। तो इसके अंदर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके और अट्रैक्ट करें और उसको यंग जनरेशन को मोटिवेट करें, क्योंकि अभी हमने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके लिए किए नहीं है कि वोकेशनल ट्रेनिंग से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग से उनको किस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की डेट में जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या डिफरेंट सेक्टर्स में जो लेबर फोर्स काम कर रही है वो अनस्किल्ड है बेसिकली, या बहुत ही सेमी स्किल्ड, बहुत ही छोटी मोटी ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं। तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है, आउटपुट है, वो बहुत ही कम है और क्वालिटी उनकी प्रोडक्शन की भी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बहुत ही पुअर है। तो उनको अगर हम ट्रेनिंग दें, उनको बहुत अधिक आवश्यकता है वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो उनके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें और उनको अवेयर कराएं कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोई एक इन्फीरियर ट्रेनिंग या स्किलिंग प्रोग्राम नहीं है। इससे उनको लाइफ लॉन्ग की एक जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जो देश में आवश्यकता है और जितना गैप है, उसमें ये गवर्नमेंट बहुत अधिक काम कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक PMEGP के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ MSME योजना चलाती है। उसके अंदर हमने देखा कि पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से लोगों ने बिजनेस लगाया तो 10 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। तो अगर 1 लाख रुपए एवरेज इन्वेस्टमेंट है एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अगर हमें क्रिएट करनी है अपने नए बिजनेस लगा के, छोटे छोटे स्मॉल और माइक्रो बिजनेस, तो सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा। 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए। और हमने पिछले दिनों कोविड में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंदर। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंदर हमने 5 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया, उसकी भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के लिए। और परंतु अगर उससे हम नए बिजनेस, उसमें से कुछ पैसे से या नए बजट एलोकेशन से कुछ नए बिजनेस क्रिएट करें, तो 1 लाख रुपए पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, जो कि एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, उससे हम करोड़ों की संख्या में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम चालू करके। तो इसकी भी बहुत आवश्यकता है पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की। रमा जी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? As Kumar sir said, skilling and entrepreneurship should go hand in hand. So those who are capable of creating industries, they provide employment. So automatically the job creation happens. So another aspect is, what I feel is when we are talking about skilling, we need to adopt new technologies. 100% it has to be new technologies. Otherwise, we are not in the picture at all. So even industry adoption to the new technology should be supported by government. And like a lot of schemes are announced, like we are talking about zero effect, zero defect, and all this includes skilling also. So there are various programs of Government of India under, improving skills for human resource. But age limit is one thing which is a big constraint for women particularly. And they are not able to get into the skilled if they are 35 to 40. So women, I think they should increase the age limit for getting into this program. It has revamped the whole program of skilling to meet the 5 trillion economy dream. Unless we revamp and look forward to making a lot of partnerships, this is not possible. समीर जी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, MSMEs को क्या कहेंगे? Very simply put, think of skills
as raw material. The importance that you attach to raw materials, attach the same importance to skills. It's only then that I believe that they will be able to not only survive but thrive profitably, and therefore we have an ability to actually see a far better future for the MSME ecosystem. Else, I do fear that there will be a lot of consolidation that is likely. इस पेशकश में इतना ही। के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया लीप, फॉर्मर मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एमएसएमई, डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई एंड फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी, साथ ही समीर साडे साहब, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाधवानी एडवांटेज। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। चलते चलते हम स्टीव जॉब्स की बात आपके सामने रखना चाहेंगे। ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन by a team of people. Wishing the MSMEs the very best. अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।